Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now you note Yes, ma'am. the topic tautology. Tautology means we want to prove the preposition which is given to us is totally true. So what is the mean of tautology? The final column will come in the terms of the true. So a tautology is a formula which is always true for every value of the prepositional variables. यानी जो भी हमको यहाँ पे prepositional variable दे रखे हैं, इनको अगर हम truth table में बनाएं and the last column will true, then it is called tautology. अगर इसमें से एक भी false होता है, then it is called contradiction. Okay? So please copy from it. This is an example of prove that A implies B and B implies B is a tautology. So first of all, क्या चाहिए हमको? हमें P लिखना है. अब यहाँ पे A B दे रखा है because I am using the online tutorial. Otherwise book में हमारे पास जो standard है वो क्या है? P Q given होगा. तो P implies Q and P. सो आपको क्या करना है? P लिखना है, Q लिखना है, P implies Q बनाना है एंड देन आपको क्या? P implies Q and P बनाना है और इस कॉलम का फोर्थ कॉलम का आपको इम्प्लीकेशन लेना है किसके साथ में? B के साथ में. जब आप फोर्थ कॉलम का B के साथ में इम्प्लीकेशन लोगे तो आपके पास फिफ्थ कॉलम आएगा एंड फिफ्थ कॉलम मस्ट बी ट्रू, देन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी. तो आप इसे नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को. यू कैन नोट इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड ऑल्सो यू कैन नोट इन टर्म्स ऑफ ए बी. बस आपको बात समझ में आनी चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटोलॉजी. ओके, तो जस्ट कॉपी फ्रॉम इट. Then the next term is the contradiction. What is contradiction? If all are false, then it is called the contradiction. A contradiction is a formula which is always false for every value. So, acha, if contradiction means every value is false, and contingency means at least one value must be false. So there are three things again. जैसे कल कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ा, ऐसे ही यहाँ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी है. टोटोलॉजी मीन्स द लास्ट कॉलम मस्ट बी ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब लास्ट कॉलम मस्ट बी फॉल्स एंड कॉन्टिजेंसी मीन्स लास्ट कॉलम have the mixed value. So that what is the example of contradiction? A and B, A or B and negation A and negation B is a contradiction. ये प्रूव करना है आपको. तो ये प्रूव किससे करना है आपको? टेबल से. तो you write A, you write B, you write A or B, then you make negation A, negation B, and then you make negation A and negation B. Then you take a AND operation between the third column and the fifth column, and you will see that the last column is F. So you don't need to write true, true. ये तो you write T and F, it's okay. And in contingency, if there is the uh, true and false, both can come, then it is called contingency. So there are three things. There are three things. First is tautology. Second is, इसको fallacy भी कहते हैं contradiction को, जिसमें सब false होता है. So
We discussed all this yesterday's lecture, and I'm writing in continuation so that you have the full chapter in a single. So this is today's tautology, then contradiction, and then contingency. So tautology means the last column must be true, false. यहाँ पे true और false दोनों आएगा. ओके, सो कौन से एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किए. ए एंड बी वाला कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, ए इम्प्लाइज बी हमने डिस्कस किया टोटोलॉजी के लिए. हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और कर सकते हैं, एंड वी विल प्रैक्टिस इट. टोटोलॉजी, देन कॉन्ट्राडिक्शन, एंड देन कॉन्टिजेंसी. तो टोटोलॉजी मीन्स द फाइनल कॉलम मस्ट बी ट्रू. कॉन्टिजेंसी मीन्स ट्रू एंड फॉल्स बोथ कैन कम. ठीक है, चलो नाउ प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस की हमने पिछली बार भी बात की थी, एंड देन वी हैव अ स्मॉल एग्जांपल्स आल्सो. अभी आपको तीनों पॉइंट क्लियर है वो वाले? यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन दैट 3 पॉइंट्स? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड contingency. You want to ask anything in that 3 points? No, ma'am. Fine. So we can move? Yes, ma'am. Okay. मैम कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल शो करना. किसका बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन. Okay. We will do more examples. Okay, समझ आ गया तुम्हें क्या करना है? Last column must be negative. So this can change with question to question. What is the propositional equivalence to a statement x and y? जो हम अभी तक P and Q बोलते आ रहे हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में तो P और Q है, तो हमारे क्वेश्चन मोस्टली P and Q में ही होंगे एग्जाम में. टू स्टेटमेंट P and Q are logically equivalent if any of the following 2 conditions hold. क्या क्या है? The truth table of each statement have the truth value, same truth value. And then second condition है कि जो उनका बाय कंडीशनल है वो अगर टोटोलॉजी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो बाय कंडीशनल है अगर वो टोटोलॉजी है, then also it is called the prepositional equivalence. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल क्या है? देखो, फर्स्ट मेथड जो मैंने तुम्हें बताया था पहले कि अगर कॉलम सेम आता है, जैसे यहाँ पे प्रूव करना है निगेशन, ये मैंने जब पेपर बनाया उसमें निगेशन का साइन ऐसा ही है, क्योंकि वो जो लहर वाला साइन है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो प्लीज इसको समझ लेना. दिस इज फॉर निगेशन. आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, दिस साइन ऑल्सो आई यूज्ड फॉर द निगेशन इन माई पेपर. दिस इज. और अगर आपको कोई पेपर में भी डाउट आए थोड़ा सा, तो आप उस समय मुझे मैसेज या कॉल मत करिए, आप पेपर दीजिए अपना, और आपको डाउट है या आपको कुछ लगता है तो पेपर में आप नोट डाल के मेंशन कर दीजिए. उस समय मुझे कॉल मत करना कि इसका आंसर नहीं आ रहा या क्या होगा या ये सिंबल क्या है. आप अपने हिसाब से कर लीजिए, है ना? देन आई विल चेक इट. और जो आपको डाउट है आप वो उस समय पूछने की बजाय, क्योंकि सब लोग फोन करेंगे या सब लोग मैसेज करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा. आप अपना एग्जाम दीजिए और नोट कॉपी में मेंशन कर दीजिए, और उसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो नेगेशन ए और बी एंड नेगेशन ए एंड नेगेशन बी कहता है कि ये इक्विवेलेंस है. तो ये इक्विवेलेंस है तो हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, फिर इसका नेगेटिव बना लेंगे नेगेशन, फिर नेगेशन ए लिखेंगे, नेगेशन बी लिखेंगे,
और नेगेशन ए एंड बी लिखेंगे। अब हम दोनों कॉलम को मैच कराएंगे कि ये जो फोर्थ कॉलम है और ये जो लास्ट कॉलम है, क्या ये मैच कर रहे हैं? यस, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। तो हम कहेंगे यस, both the columns are same of the left hand side and right hand side. That's mean क्या? ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि हम फोर्थ कॉलम और सेवेंथ कॉलम में अगर हम लॉजिकल इक्विवेलेंस निकालें, यानी कि ये बाय कंडीशन निकाले और वो पूरा टोटोलॉजी आए, तो भी हम कहेंगे कि ये क्या है? ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो प्लीज इस एग्जांपल को आप कॉपी कर लो। ये जो टेबल इसने सेकेंड मेथड का बनाया है, ये इसने ये जो दो कॉलम लिखे हैं ये सीधा ऊपर से लिखे हैं। तो आप क्या कर दो, एक ही टेबल में ये एक और कॉलम बना लो। तो 7 कॉलम तो आपने बनाए हैं, इसी टेबल में 8 कॉलम बना लो और ये दोनों बातें लिख लो कि हाउ वी कैन प्रूव बाय दीज टू मेथड्स। आई एम वेटिंग, आप कॉपी कर लीजिए। लिखा, आगे चलें। So there are huge study material available on the internet also. If you search the relevant things, then you can find very easiest way then that you can understand. Here again the inverse, converse and contrapositive is given to you, which I have told you yesterday's class, that example of conditional statement P implies Q is a conditional statement. Then negation P implies negation Q was the inverse, and converse means Q implies P and the contrapositive is negation Q implies negation P. तो देखो, if you do your homework, you will not be punished. If you are punished, you did not do your homework. This is called the contrapositive.
So when you go to this site, then you can easily understand the small things. So after my class, you also go through some of the study material which I have posted, or you can also search your own something good that is easily understandable for you. So I'm posting here the link. You can also go to this link and you can read from it also. जब तक अभी बुक का पीडीएफ नहीं मिल जाता, you can refer this. Then we also discuss about the duality principle, and it is again the duality principle state that for any true statement, the dual statement obtained by interchanging union into the intersection and vice versa, and interchanging universal set into null set is also true. If dual of any statement is the statement itself, it is called dual. अगर कोई अपने आप का ही एक तरीके से इमेज हो तो उसको हम डुएल कहते हैं. आप डुअलिटी प्रिंसिपल में आपको क्या लिखना है? सिर्फ ये 3 लाइन लिखनी है और ये एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है. मैथमेटिकल A intersection B union C is equals to A union B intersection C. If this is if this is same, then it is called duality. अब एक normal form और disjunction form भी है अपने कोर्स में. वैसे we can convert any preposition into two normal forms, conjunctive normal form and disjunctive normal form. क्या definitions है इनकी देखिए, आप लिख लीजिए. इसमें से आपको वेबसाइट नहीं खोलना पड़ेगा, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे. कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है? अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेटिंग एंड अमंग वेरिएबल्स कनेक्टेड विथ ऑर्स. अगर आपने जो और लिखे हैं उसको अगर आप एंड से चेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो डिसकंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहलाता है. It is a compound statement obtained by intersection among variable connected with unions. Hello? Hello? ओके. देन इसी तरीके से डिसजंक्टिव फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? हालांकि मैंने अभी इसके क्वेश्चंस नहीं दिए हैं एग्जाम में आपको, तो अभी आप सिर्फ इसको पढ़ लो कि क्या चीज है. अभी मैंने इसके क्वेश्चंस इस वाले एग्जाम में नहीं दिए हैं. A compound statement is in disjunctive normal form if it is obtained by operating or among variables. अगर हम यहाँ पे और यूज करते हैं, और है ना, कनेक्ट विथ एंड्स, जो एंड से कनेक्टेड हैं वेरिएबल्स, उनके बीच में अगर और यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. तो यहाँ पे देखो, अंदर और है, बाहर एंड है, तो ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है. डिसजंक्टिव में उल्टा है, अंदर एंड है, बाहर और है. दिस पेज कैन ऑल्सो प्रिंट. ठीक है. अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेडिकेट. अभी कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? You want to ask anything?
Yes, Nishant, you want to ask anything? No, ma'am. Okay, चलें आगे. Anybody? Anjali, Anshul, Divyanjali. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें आगे. Anything? Yes, ma'am. Oh, ma'am. Okay. Then the next topic is predicate logic definition. Predicate logic definition. This is again very interesting. और कल जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर पढ़ा था वो कहाँ और कैसे काम में लेंगे ये भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे. क्या है डेफिनेशन देखते हैं हम. Predicate is an expression of one or more variable defined on some specific domain. A predicate with variable can be made a proposition by either assigning a value to the variable or by quantifying the variable. अगर हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं या उसको क्वांटिफाई करते हैं तो हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं. मैं आपको और अच्छे से डेफिनेशन लिखवाती हूँ इसकी. एक्चुअली ये इतना थ्योरी है उसमें कि यहीं से ये शॉर्ट डेफिनेशन है बिल्कुल. I will share the PDF जिसमें बहुत सारा I have already shared on the Google Classroom CO1 के नाम से. Then you can go to that PDF. It has so much of theory about that predicates and all, how we can write it. So I'm not going into that theory part. So we use the capital letter to specify the predicates. The following are some example of predicates. Let EXY denote X equals to Y. Let X A B C denote A plus B plus C equals to 0. Let MX, Y denote X. जैसे आपने ये रिलेशन अपन रिलेशन फंक्शन करते हैं ना, यहाँ पर भी हमको स्पेसिफाई करना है. आपने लिखा प्रेडिकेट MXY तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है X is married to Y. अब आपने ये स्पेसिफाई कर दिया कि दिस इज काइंड ऑफ अ रिलेशन X married to Y, X, Y में. अगर अब यहाँ पे लिख दोगे A, B तो इसका क्या मतलब हो जाएगा A is married to B. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट जिसमें आप पहले से ही क्या करते हो सेंटेंस में या स्टेटमेंट की फॉर्म में आप उसको लिख देते हो एंड देन फिर आप उसका क्या करते हो फॉर्मूला वर्जन बनाते हो, उसको क्वांटिफाई कर देते हो. वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला इज अ प्रेडिकेट होल्डिंग any of the following formula. All prepositions, constants and prepositional variable are the well formulated. If X is a variable and Y is a well formed formula, then we can write for all X, Y. ट्रूथ वैल्यू चेक कर सकते हैं, ईच एटॉमिक फॉर्मूला चेक कर सकते हैं. देखो जैसे कल क्वांटिफायर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, the variable of predicate is quantified by the quantifiers.
तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिफायर. ये जो px मैंने कल भी आपको बताया था, px स्टैंड फॉर द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मींस जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मैन इज मॉर्टल, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल. तो ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल इज अ प्रेडिकेट, ये प्रपोजिशनल है, ये प्रेडिकेट है. और हम लिख रहे हैं फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो हमने क्या लिखा था, फॉर ऑल एक्स, ये कल बताया था मैंने आपको. तो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर. And then what existential quantifier? Existential quantifier state that the statement within the scope are true for some value. This is for the some value of the specific variable and it is denoted by the symbol this. So there exist some people who have long hair, so we can write hair. There exist some people who don't have hairs, we can write like it. But every human being is a mortal, for all aega, because there is no exception. Some people are dishonest can be transformed into the preposition some people, because there exist some people who have on dishonest, बाकी सब honest हैं. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, for x px, क्योंकि px जो predicate है वो already define है, वो क्या है, some people are dishonest. So you can note this example also. तो यूनिवर्सल एंड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, वो प्रेडिकेट को एक्सप्लेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है. तो यहाँ पर कुछ और रूल ऑफ इन्फेरेंस पढ़ेंगे हम. ये रूल सारे आपको नोट करने पड़ेंगे, ये काम आएंगे. और ये एज इट इज हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि ये वैलिड है या नहीं है, ये पॉलिसी है या ये ट्रू है. जैसे मैंने कहा कि टुडे इज क्लाउडी, फर्स्ट स्टेटमेंट है. रोहन गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल, है ना. If he play, he will win the match. अब तीन चीजें हो गई. तो पहली चीज हो गई the weather is good, second रोहन want to play or रोहन will go to play, और थर्ड हो गया स्टेटमेंट if रोहन will go to play then he will win the match. तीन चीजें. अब आपको इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स लगाते हैं. हर बार ट्रूथ टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होता, एंड ट्रूथ टेबल बनाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज यू ऑलवेज नीड पेन एंड कॉपी टू मेक अ ट्रूथ टेबल टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट. तो वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट हमेशा हम चेक करें किससे, ट्रूथ टेबल से. उसके बजाय after few years we set some rules that is called a rule of inference. ये जो rule of inference है ये यही है. We fixed some rule की if the statement is this then this will true, है ना. तो वो जो rules हमने बनाए हैं उसको हम कहते हैं rules of inference. Mathematical logic is often used for logical proof. Proofs are valid argument that determine the truth value of the mathematical statement. Okay, proofs are valid argument. An argument is a sequence of a statement. Argument क्या होता है, sequence of a statement है. जैसे मैंने आपको तीन statement बताए, तो weather is good, Rohan will go to play, if Rohan will play he will win the match. तो ये तीन स्टेटमेंट है PQR. अब इन PQR के आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम. अगर आपके पास 4 हो जाएंगे तो यू नीड 16. सो
वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट टू मेक अ ट्रूथ टेबल ऑलवेज। तो हम और ट्रूथ टेबल में एक भी जगह गलत हो गया तो हमारा पूरा वैल्यू गलत हो जाता है। दैट्स व्हाई आफ्टर few years we set some rules and the rules are called the rule of inference। और ये क्या है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। The argument is a sequence of statement. The last statement is the conclusion and all its preceding statement are called premises, or we need to call it hypothesis। तो जनरली हमारे बुक्स में तो hypothesis ही लिखा है। The symbol therefore is placed before the conclusion, है ना, therefore a conclusion, the conclusion, a valid argument is one where the conclusion follows the truth value of the hypothesis। The rule of inference provide the template or guideline constructing the valid argument from the statement that we already have। जो हमारे पास पहले से ही स्टेटमेंट मौजूद हैं, उन आर्ग्यूमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट प्रूव करने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं टेम्पलेट्स, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ इन्फेरेंस। वी कैन डिस्कस दिस, यू कैन आस्क एनीथिंग, otherwise you note these। पहला लिखो आप P, if P is true then therefore P और Q। अब आप इस बारे में हम बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल, ये नाम है इसका। क्या मतलब है इसका। इफ P इज ट्रू देन P और Q इज ट्रू। देखो कैसे ये बात सही है क्या। लेट डिस्कस इट। इज इट ट्रू, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा क्या। यस मोहित, यश, होगा ना। होगा, कैसे होगा चलो बताओ, डिस्कस करें इस चीज को। P ट्रू है तो P और Q में ट्रू होगा। यस, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू है तो वी ऑलवेज चूज अ ट्रू। तो P और Q में एक भी ट्रू है तो वी चूज ट्रू, देन इट इज वैलिड आर्ग्यूमेंट। यानी कि P और Q, तुम में और मुझ में एक भी आर्ग्यूमेंट अगर वैलिड है, इफ आई एम हैविंग अ वैलिड आर्ग्यूमेंट और तुम्हारा भी एक आर्ग्यूमेंट है, तो अगर हमें चूज करना है और साइन है हमारे बीच में, तो यू चूज द वैलिड वन। सो इट इज देयरफॉर P और Q एंड दिस इज फॉर द वैलिड आर्ग्यूमेंट। कि P अगर वैलिड आर्ग्यूमेंट है या ट्रू है, देन P और Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, देन कंजक्शन। अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P एंड Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। If your argument is valid, my argument is valid, therefore P and Q both are valid. Okay. The third one is called simplification. If P and Q both are true, इसका मतलब दोनों ही true है, तो therefore P is true और therefore Q is true। ठीक है, नोट करो ये तीनों। देन नेक्स्ट देखो आप, P और Q नेगेशन P। अब P और Q है हमारे पास और नेगेशन P, तो नेगेशन P और P तो दोनों ही एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। देयरफॉर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ P। दिस इज कॉल्ड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। आप नोट कर लो एंड यू कैन लर्न इट डायरेक्टली। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है।
ऑलमोस्ट कल खत्म हो जाएगा. P और Q, negation P, therefore Q. Next is very simple. If P implies Q, Q implies R, then P implies R. This is called the transitive also, and this is called hypothetical syllogism. This is called hypothetical syllogism. And the next one is constructive dilemma. इसके भी बहुत सारे questions होते हैं. Constructive dilemma. P implies Q and R implies S, and P or Q, therefore Q or S. आपके पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है. P implies कर रहा है Q को, R implies कर रहा है S को. If you read the book, you will learn it. और ये है if you play the match, you will win. 4 अलग अलग स्टेटमेंट हैं. ओके, तो इन दोनों के बीच में तो एंड का साइन है, और P और R के बीच में क्या है? और है. If you read the book or you play, therefore you can win the match or you can learn. That is called a constructive dilemma. अब तुम्हारा हो गया, पढ़ोगे तो पास होगे और खेलोगे तो जीतोगे. तो if there is a choice or there is a or you read or play, तो चॉइस किस में होगी? उनके कंक्लूजन में भी चॉइस होगी. You will win or you will pass. That is called a constructive dilemma. Am I clear? Yes, ma'am. Clear. Okay, now